education. बहुत महंगाई कर दिया, पब्लिक जीने के लिए बहुत परेशान है। महंगाई मीडियम है, ज्यादा महंगाई नहीं है ना हमारे। I'm in Secunderabad, which is aligned with the Hyderabad, capital of Telangana. Politically, it's a stark contrast with Hyderabad. While Hyderabad is dominated by Asaduddin Owaisi's AIMIM, we're looking at the BJP holding power here in Secunderabad for much over a decade, about 15 years. This time, G. Kishan Reddy is looking for a second term here from Secunderabad. It's going to be very interesting to see what his poll pitch is, considering you have a mixed bag of communities. It's not just the staunch Hindus who are located in Secunderabad. You have a sizable amount of the Muslim population here as well. So very interesting to note what this constituency wants and who they are going to put to power. Follow me on this campaign trail. Is that the BJP and the TRS campaign rallies have coincided. If you see here, on one hand it's full pink and on the other hand it's fully saffron. Very interesting to see saffron and pink side by side campaigning for their candidates. You have Padma Rao of the BRS, and here you have on the opposite Kishan Reddy. Kishan Reddy here is looking to secure a third term, and of course at this point Secunderabad seems to be a place that has favored him. The BJP is certainly trying to gain hold. This is the BRS campaign right opposite Padma Rao of the BRS here, taking out a rally in the same area of Secunderabad, wooing the same voters. Let's try and get a reaction. Very interesting pompous campaign for the Saffron Party here. As we know, the entire BJP cadre following the BJP candidate Kishan Reddy, who's also the president for the BJP here in Telangana. He's really a face for the party. He's managed to pick the BJP's vote share in a state like Telangana, the newest state in the bloc in India. Of course, at this point, a polarized campaign that's been put out, it seems to have brought in electoral dividends for the BJP. I'm going to try and catch Kishan Reddy on this campaign trail, on this truck. Certainly, nothing can match the charm of a nice election campaign trail. Secunderabad is a face of the urban electorate, neighbouring to Hyderabad. This is a constituency that the BJP has won. Hyderabad capital. Maybe, but this is Hyderabad only. Okay, this is Hyderabad. Hyderabad is dominated by AIMIM OAC, but somehow this area of Secunderabad is a BJP stronghold. Kishan Reddy, you're the BJP president. What's the mood on the ground? इस सिकंदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी तेलंगाना के स्टेट कैपिटल है, न्यू सिटी है और ओरिजिनल सिटी भी है। इस एरिया में पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। अलग अलग दुनिया के अलग अलग प्रांतों के लोग, देश के अलग अलग प्रांतों लोग इधर सेटल है। ये मिनी इंडिया है, ये मिनी इंडिया है। कॉस्मोपॉलिटन 21 लाख वोट्स भी है। यहाँ पर बहुत सारे मुसलमान लोग भी रहते हैं, तो ये बीजेपी का जो कैंपेन है हिंदू मुस्लिम के माइनॉरिटी के रिजर्वेशन के बारे में बात करती है, माइनॉरिटी अपीजमेंट के अगेंस्ट बात करती है, तो माइनॉरिटी पॉपुलेशन को क्या कहते हो सिकंदराबाद में? हम माइनॉरिटीज जो मुस्लिम्स है उनको लिए रिजर्वेशन हम दिया है। जो 10% रिजर्वेशन ईबीसी का रिजर्वेशन दिया है उसमें मुस्लिम्स है, क्रिश्चियंस है, हिंदूज भी। जो रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं है, जो भी कम्युनिटी नहीं है, उस कम्युनिटी के गरीब लोगों को हम 10% इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन दिया है। जो हाई कोर्ट का एक जजमेंट है तेलंगाना में जो रिलीजियस के नाम पर इकोनॉमिकल दे रहा हूं मैं, मगर वो रिलीजियस के नाम पर, मजहब के नाम पर रिजर्वेशन दिया है। हम मजहब पे रिजर्वेशन खिलाफ है। हाई कोर्ट भी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।
रिलीजियस के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दे सकते, ऐसा जजमेंट दिया है। उसके आधार पर हम मजहब के रिजर्वेशन के खिलाफ कर रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा कैसे है? तेलंगाना में कांग्रेस के अब टक्कर में बीआरएस नहीं है, सिर्फ बीजेपी दिख रहा है यहाँ पर। कैसे बढ़ा है? आप नए प्रेसिडेंट हो बीजेपी के यहाँ पर। कारण आज तेलंगाना जनता भी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं फिर एक बार, इसीलिए देश के जनता के साथ साथ तेलंगाना जनता भी नरेंद्र मोदी के पक्ष में है। और दूसरा, जो टीआरएस पार्टी एक परिवारवाद पार्टी था, भ्रष्टाचार पार्टी था और अहंकार पार्टी था और परिवार के नाम पर पूरा तेलंगाना को लूटा था, इसलिए तेलंगाना जनता बीआरएस को हराया। वैसे ही कांग्रेस पार्टी भी इस 5-6 महीने के अंदर जो वादा 100 डेज में करने का वादा किया था, 6 गारंटीज, इसमें इम्प्लीमेंट नहीं किया है। नहीं किया इम्प्लीमेंट। एक ही फ्री बस का इम्प्लीमेंट है। हाँ। दूसरा कुछ नहीं किया है। हाँ। इसलिए तेलंगाना जनता भी कांग्रेस पार्टी के विषय पर संतुष्ट नहीं है। हाँ। इसलिए सिर्फ आज तेलंगाना की जनता के सामने इस पार्लियामेंट चुनाव में नरेंद्र मोदी जीतते हैं, नहीं तो क्योंकि कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री कैंडिडेट है, न टीआरएस का प्रधानमंत्री कैंडिडेट है, सिर्फ बीजेपी का प्रधानमंत्री कैंडिडेट है। लोग देखते हैं कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन सा पार्टी सत्ता में। क्योंकि अलायंस, इंडिया अलायंस काम नहीं करेगी। कौन है उनका लीडर? कौन है बोलिए आप। लीडर चाहिए हमारे लीडर देश में, एक फेस चाहिए। बिल्कुल चाहिए। देखना चाहिए कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते का लोग हंसेंगे। हंसेंगे राहुल लोग। गांधी का नाम दिखाले तो लोग हंसेंगे, इसलिए ये स्थिति है। खासकर नौजवान हंसने वाला है राहुल गांधी का नाम ले तो। राहुल गांधी हमारा प्रधानमंत्री है बोले तो हंसेगा, इसलिए कांग्रेस पार्टी डर के प्रधानमंत्री का नाम भी घोषित नहीं कर रहे। बाकी सारी पार्टी जैसे एमके स्टालिन, जैसे ममता बनर्जी। बोलो ना, दम है तो बोलो ना। जनता के सामने बोलना चाहिए, उनको हक है, जिम्मेदारी भी है। आप वोट मांगे तो किसको प्रधानमंत्री बनाएगा बताना पड़ेगा ना उनको। क्यों नहीं बता रहे? डर लग रहे उनको, फेस नहीं है उनको जनता के सामने बोलने का। यहाँ पर के कविता दिल्ली लिकर स्कैम में अरेस्ट किया गया है, उसको बोल रहे हैं, बीआरएस बोल रहे हैं कि बीजेपी ईडी आईटी यूज करके ऑपोजिशन को खत्म करना चाहती है। बीआरएस को बेशरम पार्टी है, ऐसी बोलता है। वो दिल्ली का केस है, तेलंगाना का केस है। तेलंगाना राजनीति से क्या संबंध है? दिल्ली में आप पार्टी का लिकर स्कैम है, उसका इन्वेस्टिगेशन करते करते बीच में इन्हू फंस गए। इधर तेलंगाना राजनीति से, तेलंगाना प्रदेश से बीआरएस का, बीजेपी का कोई संबंध नहीं। हाँ। इतने केसीआर परिवार तेलंगाना को लूटा, दिल्ली जाके बीर ब्रांडी का बिजनेस करने के लिए कौन बोले? वो गए उधर फंस गए, हम क्या कर सकते हो? People are familiar with Paradise Biryani, the most famous here in Hyderabad. I'm going to try and catch a bite myself, but let's get the mood. This election season on ground. Hi, sorry to disturb, but what would you want from your netas this time ahead of election? Hi, we are looking for a betterment of the country. We are looking for and What kind of betterment? If I ask you, what development for the poor, helping poor people, unemployment, and there should be infrastructure development. Isn't infrastructure in Secunderabad area great? Yeah, it's doing great. Previous government also done good, and we're expecting with the present government also to develop. BRS also was good. Congress also was good. BJP. Yeah, BJP in central is good, madam. Let me ask you. This is election season. Are you going to vote? Yeah, Huh? What Congress. Always Congress. Really? What change are you looking forward to? I think about the new India for this looking there. क्योंकि अभी राइट नाउ ब्राइट फ्यूचर के लिए सब कांग्रेस बेस्ट रहेंगे अभी राइट नाउ। कांग्रेस ब्राइट फ्यूचर के लिए कांग्रेस, लोग वहाँ पर कह रहे थे ब्राइट फ्यूचर के लिए बीजेपी। लास्ट 10 years में देख लिया हम लोग बीजेपी कितना अच्छा वर्क कर रही है, इंडिया के लिए कितना रन कर रही है बीजेपी, चेक कर लिया हम लोग। बट अभी तो राइट नाउ अभी कांग्रेस बहुत ज्यादा अच्छा करेंगे इन फ्यूचर में, वो ट्राई करेंगे कांग्रेस। In India, you think everything is going fine? Is there scope for change? Not at all. A lot has to be done in the field of education and medicine and all. Medicines are available, but not for everybody. And education a lot has to be done. महंगाई ठीक है, ज्यादा तो नहीं है। ज्यादा तो नहीं, नहीं है। आपके लिए ज्यादा नहीं है? नहीं है महंगाई। अच्छा, नहीं है। ज्यादा नहीं है तो पैसे वाला है तो ज्यादा दिखता नहीं ना।
वाले हो इसलिए नहीं। हालांकि कोई बात नहीं है, महंगाई मीडियम है, ज्यादा महंगाई नहीं है ना मैडम। हाँ, वो कांग्रेस रात में 200 रुपये का दाल गया था मालूम, वैसा तो नहीं है ना अभी। अच्छा, गैस सिलेंडर और ये वो गैस सिलेंडर मिनिमम 1000 रुपये रहता साल को। आपके लिए गैस सिलेंडर ठीक है ना, अभी 800 रुपए कुछ है, पहले अब 1000 से चले कम तो 200 रुपए सहन कर सकते हो। कर सकते हैं, मीडियम क्लास है कर सकते हैं। नहीं कर रहे कुछ भी, गरीब आदमी मंडी तक कर रहे, मंडी तक कर रहे, जी रहे, बस वो राशन का चावल खा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। वो राजीव गांधी कुछ नहीं कर रहा, वो राहुल गांधी कुछ नहीं कर रहा, केसीआर कुछ नहीं कर रहा, मोदी कुछ नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहे। देखो मंडी तक कर रहे। मोदी जी कर रहे हैं ना, चावल दे रहे ना महीने को 5 किलो हर। चावल दे रहा माँ, कुछ भी नहीं कर रहा। वो चावल कर रहा तो क्या कर रहा, वो फेंकने का जमाने से चावन है, कांग्रेस इंदिरा गांधी सब आए सो जब से चावन है। जब भी एक है ना अम्मा, अभी फ्री है, जब भी 1 रुपए में था, 1 रुपए में था जब भी, तभी अभी क्या फ्री दे के 5 किलो दे रहे। फिर क्या हो रहा, बाकी का ये योजना है जो प्रधानमंत्री का, सब आपको लाभ आया है? कुछ भी नहीं आया अम्मा। हमारा सीताफल मंडी रविंद्र नगर है। हाँ, हम मेहनत करते खाते, उसके बाद में कुछ भी नहीं दे रहा हमारे को। आप क्या कहते हो? आप क्या विकास चाहते हो? ये बोल रहे हैं कि बीजेपी का विकास आया नहीं है उनके पास। बीजेपी का विकास आया क्यों नहीं, ये लोग अभी लिए नहीं, अभी तक ये लोग, इनको आइडिया नहीं है। अभी बहुत सारे चीजें आ गए बीजेपी में, बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा, सब जने बीजेपी चाह रहे हैं अभी यहाँ पे। BRS candidate Padma Rao, who's facing off Kishan Reddy here from Secunderabad. आप कॉन्फिडेंट हो? डेफिनेटली 100%। बोलिए। क्यों नहीं? क्यों? मास में रहने वाले, पीपुल्स के बीच में रहने वाले हमेशा जीत ही हासिल करते हैं। अच्छा। अभी गुजरे 4 टाइम से MLA हूँ मैं, हाँ, पता है आप MLA हो, मगर हर BRS बार 20 साल से MLA हूँ। अब तो BRS पावर में नहीं है। और में नहीं है तो भी जीत रहे हैं हम। हाँ, कैसे? पीपल जो है, जो सर्विसेज करने वाले 24 आवर्स जो नेता लोग जो अवेलेबल रहते हैं, उनको डेफिनेट साथ देते हैं उनको। ये पॉलिटिकल पार्टीज हुए बोल के नहीं देखते, वर्कर को देखते हैं। वर्कर को देखते हैं। आपने क्या किया है सिकंदराबाद के लिए? सिकंदराबाद में जो है सिविल इम्यूनिटी जो भी रहते हैं वो डेवलप करते जाते रहते हैं। सिविक सिविल कैसे? एमिनिटीज हाँ, पता है कैसे, कौन सा? ऐसे वो तो रोड्स बोलो या सीवरेज सिस्टम बोलो, और गरीबों के लिए 2 BHK, ये सब जो है करते रहते। ये एक बार जो है कोई इश्यू खत्म नहीं होता, एक 4 इश्यू आए तो उसको सॉर्ट आउट करे तक जो है फिर नया इश्यू तैयार किया जाता है। आते रहता है, यही पॉलिटिशियन का जिंदगी ऐसे ही होता है। मगर ये बार तो BRS का इमेज थोड़ा धक्का लिया है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 10 सीटें जीत रही है बार। 17 से 10। आउट ऑफ 17 में 10 जीत रहे, सिकंदराबाद पक्का जीत रहे। अच्छा, सिकंदराबाद किशन रेड्डी ने बोला है कि मोदी के नाम पे वोट मिलेगा। अब उनका नाम नहीं बोल लेना, मोदी का ही बोल लेना उन्होंने, या नहीं तो जो है राम जी का नाम बोलना, वोट दो बोलना। हम क्या की सर्विस कर रहे हैं, हमारे नाम बोल के, हमारा पार्टी का नाम। आप राम को नहीं मानते? क्यों नहीं मानते, घर में पूजा करते, लेकिन राम के नाम पे जो है वोटों का सियासत नहीं करते। वोटों का सियासत कौन? हम भी हिंदू है, राम को पूछते हैं हम भी। तो जो जब भगवान को पूछते हैं, उसके बाद में जो है पॉलिटिकल लाइफ है। पॉलिटिकल लाइफ है। भगवान के राम मंदिर के नाम पे बहुत पॉलिटिक्स हुआ है। वो कहते हैं कि कांग्रेस BRS और बहुत सारे नेता को इनवाइट नहीं, और कितने साल राम जी का नाम इनवाइट किया था राम मंदिर के इनॉग्रेशन को, कोई नहीं गया। और कितने साल लेंगे राम जी का नाम? मंदिर बनाए हो गया, प्रतिष्ठा हो गया, वहाँ को छोड़ देके जो पीपुल्स इश्यूज लेना। ये दिल्ली में जो लिकर का पॉलिसी में कविता को लिया गया है, वो अननेसेसरी जो है क्रिएट करे से मोदी जी जो है उनके अगेंस्ट जहाँ स्ट्रांग रहते हैं उनको अंदर, अब केजरीवाल को भी अंदर ढकल दिए, कविता अंदर है। तो आप बोल रहे हो कि ये सब निर्दोष है? निर्दोष नहीं, बकवास भी है ये। उनका क्या है, जो स्ट्रांग पीपुल्स रहती है उनको ले जाना, अंदर ढकल देना, कुछ इश्यूज उनके सर पे डाल देना और अंदर ढकल देना। अगर निर्दोष है तो फिर कोर्ट क्यों, बेल क्यों नहीं मिल रहा है उनको? मिलता, आज नहीं कल मिलता, कल नहीं परसों मिलता। कोर्ट है वो, आपके इसमें मेरे इसमें नहीं है ना, वो जुडिशियल है वो। जैसा जैसा उसका टाइम आएंगे वो पूरे जो है, केजरीवाल भी बाहर आएगा, कविता जी भी बाहर आएगा। BRS का क्या कहना है? जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, ये बार असेंबली में कांग्रेस को उन्होंने वोट किया। बहुत सारे मुसलमान आपकी पार्टी को वोट करते थे पहले। सुनो, असेंबली में यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करके दिल्ली को भेज दिए हम। सबसे पहले जो है तेलंगाना स्टेट था रेजोल्यूशन पास करना, पास करे सेंट्रल को भेजा दिए। अब उनके हाथ में रहता हो।
अभी तो कांग्रेस गवर्नमेंट आई है, 5-6 गारंटीज लेके आई है। बीआरएस को क्या इम्प्लीमेंट करे उसमें? एक महिलाओं के लिए जो है फ्री बस के सिवा बाकी कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ अभी। ये जो मैं बोल रही हूँ कि रेवंत रेड्डी ने ऐसे प्रोमिसेस दिया है, वो कुछ किया नहीं ना। प्रोमिसेस बहुत किए, उनको पता है इलेक्शन कोड आता, उसमें 1-2-3 महीने गुजर जाएंगे, उसके बाद इलेक्शन हो जाएगा तो कोई पूछने वाले नहीं रहेंगे। ये अच्छा नॉनवेज बिरयानी खिलाया है सब आपके लोगों को। वो बिरयानी नहीं होता, वो मटन करी बघारा राइस, हैदराबाद का मटन थोड़ा सा आप भी खा लो, जाके जो है दिल्ली में बोलो फिर टेस्ट कैसा रहता हैदराबाद का। अच्छा हैदराबाद का खाना अच्छा है। ऑल इंडिया में नहीं, एंटायर वर्ल्ड में जो है हैदराबाद का बिरयानी फेमस है। आज यूएस में, लंदन में, कनाडा में किधर भी जाओ, हैदराबाद बिरयानी बोले तो जो है मास जो है बहुत फेमस है सबसे। और बीआरएस सबसे फेमस किस लिए है? पीपल्स डेवलपमेंट ओनली, पीपल्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, पीपल्स डेवलपमेंट ओनली। We've seen rapid development in areas of Secunderabad. Of course, the BJP is hoping to retain ground here, and the BRS is looking to revive its fortune. We're seeing a three-way fight, but nonetheless, Kishan Reddy opposite Padma Rao seems like a feisty and a fiery face-off in Telangana. BJP hoping to up its overall numbers in the state. It's very interesting that the BJP has picked up with each passing election here. Are they really going to be replacing BRS as number 2 in Telangana? Number 1, at least in the assembly segment, seems to be the Congress with their thumping victory. It remains to be seen if that Congress really manages to retain that assembly glory up until Lok Sabha elections. Of course, 4th of June will really give us an understanding into this state's politics. With camera person Prashant, this is Nabila Jamal signing off for Secunderabad, Telangana.